there are certain types of stories which interests us a lot, and one such type of a story is the paranormal stories, or stories involving mysteries, stories involving ghosts, stories involving supernatural powers. A Face in the Dark is one such supernatural story by a very renowned author, Ruskin Bond. The story A Face in the Dark is set in a pine forest outside Shimla. It revolves around Mr. Oliver, an Anglo Indian teacher. An Anglo Indian person is a person whose parents are of British descent. Either both the parents, mother and father is a Britisher, is of a British descent, or maybe the mother is a British descent, father is a British descent. So that's an Anglo Indian person. So Mr. Oliver is an Anglo Indian teacher. The writer makes the supernatural look natural by his artistic skill. Mr. Oliver has a strange experience while passing through a pine forest at night. So before we go on to the story, I would like to tell you all something about the author Ruskin Bond. He is one of my favorite authors. Ruskin Bond was born in Kasauli, which is in Himachal Pradesh, on 19th of May 1934. He was born in a military hospital as his father worked in the Royal Air Force from 1939 to 1944. When Bond was 8 years old, his mother separated from his father and married a Punjabi Hindu, Hari. Bond spent his early childhood in Jamnagar, that is in Gujarat, and Shimla. At the age of 10, Ruskin went to live at his grandmother's house in Dehradun after his father's death that year from jaundice. Ruskin was raised by his mother and stepfather. He did his schooling from Bishop Cotton School in Shimla, from where he graduated in 1950 after winning several writing competitions in the school, including the Irwin Divinity Prize and the Haley Literature Prize. He wrote one of his first short stories, Untouchable, at the age of 16 in 1951. Most of his works are influenced by the life in the hill stations at the foothills of the Himalayas, where he spent his childhood. His first novel, The Room on the Roof, was written when he was 17 and published when he was 21. It was partly based on his experiences at Dehradun in his small rented room on the roof and his friends. His earlier works were written without being meant for any particular readership. His first children's book, The Angry River, in the 1970s, the second one being The Blue Umbrella, which is quite famous. I think you all must have read this story in the 7th or in the 8th standard, has its writing toned down on a publisher's request for a children's story. We are talking about The Angry River. It had its writing toned down. The publisher made Ruskin Bond to write it for the children, use words which children could easily comprehend and understand.
On writing for children, he said, I'm quoting him, I had a pretty lonely childhood, and it helps me to understand a child better. Bond's work reflects his Anglo-Indian experiences and the changing political, social, and cultural aspects of India. So that is something about Ruskin Bond. Now let's talk about the story. The story, A Face in the Dark, revolves around an Anglo-Indian teacher named Mr. Oliver. It is set in a pine forest outside Shimla. Shimla is a famous hill resort, we all know that, of Himachal Pradesh. Mr. Oliver was returning to his school late one night on the outskirts of the hill station of Shimla. The Simla Bazaar was about 3 miles from his school. He took a shortcut and was returning through the pine forest. He carried a torch with him. There he saw the figure of a boy in the light of the torch. He found him sitting alone on a rock. He stopped there. He went closer to the boy in order to recognize him and said, "What are you doing out here, boy?" The boy appeared to be crying. His head hung down and he held his face in his hands, and his body shook convulsively. It was a strange, soundless weeping. Mr. Oliver felt uneasy. He asked the boy to tell him his trouble and look up. The boy looked up and took his hands from his face and looked up at his teacher. The light from Mr. Oliver's torch fell on the boy's face. It had no eyes, no ears, nose or mouth. It was just a round, smooth head with a school cap on top of it. He got frightened and the torch fell from his trembling hand. He turned and ran towards the school building and called for help. He stumbled up to the watchman, gasping for breath. He told the watchman that he had seen something horrible, a boy weeping in the forest, and he had no face, he had no eyes, nose, mouth, nothing. The watchman raised the lamp to his own face. The watchman had no eyes, no ears, no features at all, not even an eyebrow. And that's when the wind blew the lamp out. It is a supernatural story, and Ruskin Bond makes the supernatural look natural. Mr. Oliver may have fancied that the boy had no eyes, ears, nose or mouth. He gets frightened and runs towards the school building. His mind is gripped with fear when he sees the watchman. The watchman has no eyes, no ears, no features at all, not even an eyebrow. All this makes the story mysterious, supernatural and strange. तो ये कहानी अ फेस इन द डार्क रस्किन बॉन्ड की लिखी गई कहानी है. ये कहानी एक स्कूल टीचर के इर्द गिर्द घूमती है. ये स्कूल टीचर मिस्टर ओलिवर एक एंग्लो इंडियन टीचर है जो कि बिशप कॉटन स्कूल शिमला बिशप स्कूल में पढ़ाया करते थे. बिशप स्कूल ये बोर्डिंग स्कूल है. ये दुनिया के प्रसिद्ध स्कूलों में से एक स्कूल है. टाइम्स मैगज़ीन में एक बार इसके बारे में लेख लिखा गया था. इसको कंपेयर किया गया था, इंग्लैंड के एटन स्कूल से कंपेयर किया गया था. इंग्लैंड का जो एटन स्कूल है, ये माना जाता है कि ये स्कूल के वजह से अंग्रेज़ों ने पूरे विश्व के ऊपर राज किया है, क्योंकि यहाँ के जो विद्यार्थी जो ग्रेजुएट होकर यहाँ से पास होकर जो निकलते हैं वो बड़े बड़े अफसर बनते हैं, बड़े बड़े अफसर बनते हैं, बड़े बड़े खिलाड़ियाँ बनते हैं. यहाँ पे जो पढ़ता है
वह ज़िंदगी में कुछ कर गुजरता है। तो बिशप स्कूल को एटेन ऑफ द ईस्ट रेफ़र किया गया था, यानी कितना प्रसिद्ध स्कूल है। यानी ये बताना चाहता है कि ये स्कूल एक बहुत डिसिप्लिन्ड स्कूल है। तो मिस्टर ओलिवर इस स्कूल के टीचर थे, क्योंकि ये कुंवारे थे, शादीशुदा नहीं थे, इनका कोई परिवार नहीं था। तो अक्सर शाम को ये अपने स्कूल से शिमला बाज़ार की तरफ चले जाते थे। शिमला बाज़ार स्कूल से करीब 3 मील की दूरी पर था। शिमला बाज़ार में सिनेमा हॉल थे, रेस्टोरेंट्स थे। तो मिस्टर ओलिवर अक्सर अपना शाम का समय शिमला बाज़ार में गुजारा करते थे और अंधेरा होने के बाद शॉर्टकट रास्ते से, जंगल के रास्ते से वह वापस से अपने स्कूल आ जाया करते थे। इस जंगल के बारे में बताया गया था, पाइन फॉरेस्ट के बारे में बताया गया था कि ये बहुत ही ईरी किस्म का जंगल था, क्योंकि कभी कभी जब यहाँ से जब हवा चलती थी तो इन पेड़ों से कुछ अजीब किस्म की आवाज़, डरावनी आवाज़ आया करती थी, जिसके वजह से लोग अक्सर इस जंगल से दूर से गुज़रते थे। लेकिन मिस्टर ओलिवर एक बहादुर टीचर थे, बहादुर इंसान थे। उनके मन में भूत प्रेत के बारे में कोई विश्वास था नहीं। तो वह एक ऐसी ही रात को जब अपने स्कूल की तरफ वापस आ रहे थे शिमला बाज़ार से, उनके हाथ में टॉर्च था। टॉर्च की जो बैटरी थी शायद कमज़ोर हो गई थी और वह फ्लिकर कर रही थी, बंद चालू हो रही थी। अक्सर जब भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है, हमने अक्सर देखा है, भूत प्रेत की कहानियाँ देखी है, पिक्चर देखे, मूवीज़ देखे, तो इलेक्ट्रिसिटी के साथ में, करंट के साथ में कुछ ना कुछ होता है। ये करंट जो है कमज़ोर होता है, फिर वापस से आता है, यानी लाइट्स बंद होती है, बंद चालू होती है। तो वैसे ही मिस्टर ओलिवर की टॉर्च भी बंद चालू होने लगी और इस बंद चालू टॉर्च में मिस्टर ओलिवर देखता है कि एक विद्यार्थी पत्थर के ऊपर बैठा हुआ है। अब स्कूल का रूल था कि विद्यार्थी लोग शाम को अंधेरे के बाद स्कूल से बाहर उनको निकलना मना था। तो मिस्टर ओलिवर ने सोचा कि मैं इस बच्चे को पकड़ लेता हूँ, कौन बदमाश है जिसने बदमाशी की है, स्कूल से बाहर अंधेरे होने के बावजूद भी वो स्कूल के बाहर है। तो टॉर्च मारते उसके तरफ टॉर्च मारते हुए पूछता है कि तुम कौन हो बॉय, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। लेकिन जब मिस्टर ओलिवर करीब जाते हैं तो देखते हैं कि वो बच्चा जो है रो रहा है। उस बच्चे ने अपने चेहरे को अपने हाथों में छुपा रखा था और सिसकियाँ भर भर कर रो रहा था, अजीब किस्म से रो रहा था, बहुत ही अजीब तरीके से सिसकियाँ भर भर कर रो रहा था। तो मिस्टर ओलिवर परेशान हो गए, उनका जो गुस्सा था वो परेशानी में बदल गया। तो उसने बच्चे से पूछा, क्या बात है बच्चा, बताइए मुझे, आप क्यों रो रहे हो। लेकिन बच्चे ने फिर भी कुछ नहीं बताया। तो ओलिवर ने कहा, ऊपर देखो बच्चा, बताओ क्या हो गया, क्या बात है। और फिर उन्होंने बच्चे की तरफ टॉर्च मारा और बच्चे ने अपने चेहरे से हाथ हटाते हुए उनकी तरफ देखा। मिस्टर ओलिवर इस बच्चे का चेहरा देखते ही घबरा गए, उनके हाथ से टॉर्च गिर गया, क्योंकि इस बच्चे के चेहरे पर ना तो आँख था, ना नाक था, ना मुंह था, ना कान था, ना भुजाएं थी। ऐसा चेहरा देखकर मिस्टर ओलिवर घबरा उठे और उनके हाथ से टॉर्च गिर गया और वो अंधेरे में भागने लगे, स्कूल की बिल्डिंग की तरफ भागने लगे अंधेरे रास्ते में। और भागते भागते अचानक से उन्हें एक रोशनी दिखाई दी। एक चौकीदार के हाथ में लैंटर्न था और लैंटर्न की रोशनी की तरफ मिस्टर ओलिवर भागते हुए गए और इस चौकीदार ने पूछा, क्या बात है साहब, कुछ हादसा हुआ है क्या। तो ओलिवर ने बताया कि बहुत ही अजीब घटना घटी उसके साथ में। उसने एक बच्चे को देखा है, स्कूल के बच्चे को, स्कूल का यूनिफॉर्म पहनकर था, टोपी, सूट बूट, लेकिन उस बच्चे के चेहरे पर कुछ एक्सप्रेशन नहीं था। उस बच्चे के चेहरे पर ना आँख थी, ना नाक था, ना मुंह था, ना कान था, ना भुजाएं थी। बहुत ही अजीब
चेहरा था बच्चे का। तो चौकीदार ने लैंटर्न को उठाते हुए, अपने चेहरे की तरफ उठाते बोला, कहीं ऐसा तो नहीं था। और इतने में यहाँ पर हवा से वह लैंटर्न बुझ जाती है। देखो, कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है, लेकिन कहानी में अभी भी एक मिस्ट्री है कि ओलिवर के साथ में क्या हुआ। लैंटर्न बुझने के बाद ओलिवर के साथ में क्या हुआ? क्या वो स्कूल पहुंच पाया? क्या वो वहाँ से फिर से भागा? तो एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर ये कहानी अंत करती है। तो ये एक ऐसी कहानी है जहाँ पर जो मिस्टर ओलिवर है, जो अ फेस इन द डार्क की कहानी इनके इर्द गिर्द घूमती है। मिस्टर ओलिवर एक एंग्लो इंडियन टीचर है, और जब वो स्कूल वापस लौट रहे थे उनके साथ में अजीब घटना घटती है। इसमें एक और जो मेन लीड कैरेक्टर है वो है द बॉय सिटिंग ऑन द रॉक और द चौकीदार। ये 3 ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो इस कहानी के मेन पात्र बन जाते हैं। तो इस कहानी का थीम क्या है? इस कहानी का थीम है सस्पेंस, इस कहानी का थीम है मिस्ट्री, इस कहानी का थीम है सुपरनैचुरल। लेकिन सुपरनैचुरल होने के बावजूद भी ये एक बहुत ही नेचुरल वे में दिखाई जाती है। एक पाइन फॉरेस्ट में, जंगल के बीच में, नेचर के बीच में घटना घटती है। तो आज का जो मैंने सुबह जो वीडियो भेजा था उसमें मेरी आवाज़ ठीक से सुनाई नहीं आ रही है, इसके लिए मैंने छोटा सा वीडियो आपके लिए फिर से बनाया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर इस वीडियो के द्वारा समझ में आ जाएगा।